This press conference is specially designed and dedicated to take care of these problems. We also came to know about this particular event internationally on a very later stage. So as organizers, as supporters, as fans of cricket, we will contribute and we are contributing. That contribution is this series that is happening in Singapore. Once we are done with it, once the alignments are done internationally, then the World Cups, and we have a very long roadmap planned for the next 5 years, and you will see this cricket more often. We are inclined towards the efforts कि broadcasters भी हमारे साथ जुड़ना चालू है और इनको एक correct exposure मिलना चालू है. जब तक exposure मिलेगा नहीं, लोगों को पता चलेगा नहीं, support generate कैसे होगा? आज आप लोग आए हैं, आज आप हमको cover कर रहे हैं, तो वो support के लिए ही तो है. And they will never have this complaint again. That is what we are trying to commit on this dais. So basically, we need support from you guys because, as I told you guys, people are not aware about them, about this team. अब अगर आप सपोर्ट करोगे तो लोगों को पता चलेगा कि ऐसी टीम एग्जिस्ट करती है. See, I'm sorry, Chirag, I'm interrupting. The reason we as individuals, we got into a mode of helping hand. Of course, we can't do what these guys are doing being as player. But you know, when you get into these kind of domain, the basic thing which we do is we dedicate our time. And when we dedicate our time, I don't mean by only me, it's you who has taken your 2-3 hours and you waited for us just to have these kind of conversation and get the details about it. So these things, I am sure it's gonna be pioneer from here onwards. Like we would like to see you again and again whenever we request you to join us. We would like Hiten Bhai to join us as many as time possible if he is around and he's available. So when these things happens, these issues which Shubhrata was talking about, the facilities and everything, when people accumulate in one particular place, that becomes gathering. So in like what we do in normal cricket of IPL, we open the gate at 4 o'clock for the match. So at 4 o'clock, we see just 2 people or 5 people entering. But by the time the match starts, we see the crowd of 35,000 in average in any stadium. So right now, we are in a stage, we have just opened our gate to make sure that people should start entering into it. And of course, by the help of you people who are listening to us or probably sharing our views with other more people, because you have the authority and the capacity to convey our message to many more people. So from here onwards, we assure you, the people whom we have joined hands, like ADR Creation, they have been very helpful. We have a long-term association with ADR. Same goes with Big Brother. I would really thank Sachin Joshi. He hasn't reached, I think he's on his way. That, you know, at the point when we needed somebody to stand by us, they did. And that's the biggest strength what we were looking for. Now here onwards, when they come on board and they start facilitating us, I think players like Shubhro sir or a person like Harun sir, they will spend some more time in terms of ideating more or creating more players across the country because they have been the pioneer of it. So it's just a beginning, I would say. Restart, we are doing it, and for sure we are gonna take a next level. We have other tournaments coming after this. We have a tournament in Australia. We have a tournament in Sri Lanka. Sri Lanka is visiting us in India, in Mumbai. So here onwards, you will keep seeing us, disturbing you and asking you to join us again and again. My question is Hiten. Hi. Yeah, you have given your valuable time for this thing. So Yeah. are you planning to get all your fellow members to join the... I would love to. You see, the whole thing is in this, you cannot force anybody. You have to start. अगर मैं ऐसे पहले किसी को बोलूँ यार मेरे साथ ऐसे चल बोलेगा तू गया क्या पहले तू तो जा पहले हाँ तो सीधा सवाल ये है तो मैं गया था आई सपोर्ट अगर मुझे अच्छा लगेगा कि अगर हम सब मिलकर सपोर्ट करें क्योंकि जैसे सब ने कहा कि अवेयरनेस आ जाएगी उसके बाद में आई एम श्योर किसी को बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी यू डोंट हैव टू टेल एनीबडी और एवरीबडी दैट यू नो यू शुड सपोर्ट दिस और यू शुड डू दिस एक बार अवेयरनेस आ गई तो दे विल कम सो मेरा मानना वो है थैंक यू यस कि अगर अभी क्रिकेट की आपने बात की खास करके इंडिया में अगर स्पोर्ट्स क्रिकेट को देखा जाए तो इंडियन मेंटालिटी अभी के टाइम में ऐसी हो गई कि शॉर्ट एंड क्रिस्प देखते हैं जैसे कि आईपीएल चल रहा है
20 ओवर्स। क्योंकि वो एंटरटेनमेंट से भी साथ में जुड़ा हुआ है, हम्म। तो लगता है कि आगे चल के कुछ एंटरटेनमेंट सोर्स भी लगाना चाहिए, क्योंकि स्पोर्ट्स से पहले बिजनेस देखा जाता है अभी के टाइम में कि कितना प्रॉफिट मिल रहा है, कितना बिजनेस देगा, क्योंकि तभी आईपीएल भी एक अलग बूम पे है, और शायद इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो भी वो एक अलग हाइप देता है। तो ये क्वेश्चन का अगर आंसर तो ये जो है, जहाँ तक सवाल है एंटरटेनमेंट का, वो सब ये सब मैं इन राशिद भाई से कहता हूँ, वो आपको जवाब दे देंगे। बाकी मुझे इतना पता है कि जहाँ तक खेलने की बारी होगी या क्रिकेट की बारी होगी या मैच की बारी होगी, उसमें हम पूरा सपोर्ट करेंगे। आगे आपका सवाल था कि एंटरटेनमेंट, जस्ट टू टेक यू one day before, like yesterday, till yesterday, I was a part of IPL. I was working for IPL. And if you're talking about business, कि business पहले देखा जाता है, फिर क्रिकेट या फिर कोई स्पोर्ट्स देखा जाता है, शायद मैं हाँ भी नहीं बोलूँगा और आपको ना भी नहीं बोलूँगा, बिकॉज दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली चलती हैं। बट अगर मेरा पर्सनल तजुर्बा या मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आप शेयर करने के लिए कहेंगे, तो मैं कल तक IPL में काम कर रहा था, बट आई फील दैट कि ये इस टीम को मेरी या हम सब की, इंक्लूडिंग आपकी, ज़्यादा ज़रूरत है, बशर्ते जो क्रिकेट अभी चल रहा है। आप इंटरटेनमेंट क्रिकेट में तब देख रहे हैं जब 2008 में IPL शुरू हुआ। उससे पहले सिर्फ आप और मैं या हम सारे लोग ज़्यादातर वनडे क्रिकेट देखते थे या फिर टेस्ट क्रिकेट देखते थे। तो उस क्रिकेट को भी यहाँ तक 2008 तक पहुँचने में तकरीबन 108 साल लगे थे। तो 108 साल की जर्नी को हम अभी कवर करने का कोशिश नहीं करेंगे। हम ये कोशिश ज़रूर करेंगे कि हमारी जो जर्नी हारून सर और सुब्रत सर जैसे लोगों ने 7 साल 8 साल पहले शुरू करी थी, उसकी हिस्ट्री को आगे बढ़ाते जाएं। इंटरटेनमेंट, आप क्रिकेट खेलिए, उससे ज़्यादा इंटरटेन आप कहीं नहीं हो सकते, क्योंकि दैट्स द बेस्ट इंटरटेनमेंट एंड दैट्स द रीजन वी ऑल इंडियंस आर मैड आफ्टर क्रिकेट। मैंने इसलिए पूछा था क्योंकि इंडिया का नेशनल गेम जैसे हॉकी है, उनको भी सेम बूम नहीं मिलता है, कि बीच में बहुत सी बातें भी हुई थी इस चीज़ को लेकर के, तो शायद ये पैरेलल ट्रैक पे होंगे हॉकी के से अगर कंपेयर करें, बिकॉज एक ही ट्रैक पे अभी शायद ऐसा, या फिर पैरेलल चल रहा है। हॉकी भी शायद उतना पीछे है जहाँ जितना बूम मिलना चाहिए था हॉकी को कंपेयर टू क्रिकेट। आप कभी हॉकी इंडिया लीग देखने गए हैं? नहीं गए। आपने कभी हॉकी इंडिया लीग कवर करा है? आप यहाँ पे हैं, आपके सवाल का जवाब आपके पास है। ये हम लोगों की सोच है, ये आप और मेरे जैसे लोग, मैं शायद बुढ़ा हो गया हूँ, आप यंग हैं अभी, हम जैसे लोग किसी भी स्पोर्ट को या तो हम बिजनेस की तरफ लेके जाते हैं या तो पैशन की तरफ लेके जाते हैं। ये आपका पैशन, आप जैसे सारे जो मेरे दोस्त हैं जो यहाँ आए हुए हैं इस इवेंट को कवर करने के लिए, उनका पैशन था क्रिकेट, ये उसकी वजह से यहाँ पे हैं। इनमें से कई ऐसे लोग भी होंगे आई एम श्योर जो शाम को IPL कवर करना होगा उनको, बहुत सारे लोगों को, बट वो फिर भी हमारे लिए टाइम निकाल रहे हैं। वी आर थैंकफुल फॉर हिम, बट अगेन इट्स अ प्रोसेस विच टेक्स टाइम टू रीच टू अ सर्टेन पोजिशन। वी हैव इनिशिएटेड इट। A person like Harun sir has given his 8 years. कुछ ना कुछ तो वजह होगी कि इन्होंने इतना वक्त 8 साल किसी भी एक पर्टिकुलर डोमेन में इन्वेस्ट करना, 11 साल किसी एक पर्टिकुलर डोमेन में लगे रहना हर दिन, और दिन के तकरीबन 15 से 17 घंटे देना, इट्स अ डेडिकेशन। सो दैट डेडिकेशन इज केम आउट एज पैशन एंड दैट्स वेयर यू केम इन द पिक्चर टू हेल्प अस। एंड आई थिंक रादर से कि हारून साहब इस पे कुछ बात करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए, अभी बात करी थी आपने मनोरंजन की क्रिकेट को लेके, वाकई में अब क्रिकेट एक मनोरंजन का साधन बन गई है। टेस्ट मैच का एक अलग पैशन है और वनडे का एक अलग है, और 2020 आई है तो वो प्योर समझ लीजिए कि कंप्लीट एंटरटेनमेंट प्रोग्राम हो गया है वो। तो हम लोगों ने जिस वक्त क्रिकेट शुरू कर दी उस वक्त 2020 का नाम निशान भी नहीं था। वैसे तो 2002 से मैं लगा हूँ, लेकिन जो प्रॉपर जो टीम हमने इंडिया टीम बनाई वो 2007 से बनाई। देखिए, आप लोग कहते हैं कि आपको आज तक मालूम नहीं पड़ा, आप लोगों को यकीनन मालूम पड़ जाता अगर हमको कोई थोड़ा सा सपोर्ट करने वाला मिल जाता। मैं आपको बड़ी 2-3 मज़ेदार बात बताऊंगा। मैं खेल मंत्रालय गया, उनको परमिशन के बिना हम कोई काम करते नहीं है। उनको बात करी कि साहब हम ये टीम चला रहे हैं, अब तो विधिवत रनिंग अच्छे ढंग से चल रही है और हम एशिया कप जैसा एक बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, लिहाजा आप हमको सपोर्ट करिए। तो खेल मंत्रालय ने बोला कि जितना भी फिजिकल चैलेंजेज क्रिकेट खिलाड़ियों का या जो भी स्पोर्ट्स होते हैं उसका हम पूरा फंड पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया को देते हैं।
आप पैरालंपिक कमेटी को बात कीजिए, वो आपको कर देंगे। हम लोग खुशी खुशी पैरालंपिक कमेटी ऑफ पहुँच गए। जब पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के पास पहुँचे तो बोलते हैं हम क्रिकेट को अपना खेल ही नहीं मानते हैं। अब बताइए इनके साथ कितनी बड़ी ट्रेजेडी है। देखिए एक दिव्यांग, अब आजकल तो दिव्यांग वक्त शब्द चल रहा है, मोदी साहब ने दिया है, और हम तो आज भी वही शब्द पुराना भी ले लें तो कोई बुराई नहीं है। जिस घर में अगर कोई बच्चा विकलांग पैदा हो जाता ना, बच्चा तो पैदा विकलांग होता है, माँ बाप भी उसके साथ विकलांग हो जाते हैं। हर किसी का आज जिस तरह से हमारे देश में इसको एक बताया ना भाई ने, धर्म के रूप में हम लोग लेके चल रहे हैं क्रिकेट को। तो आज कोई भी ऐसी फैमिली नहीं है जो अपने बच्चे को क्रिकेटर नहीं बनाना चाहती हो। जैसे कि भाई ने पूछा कि कहा कि अभी हॉकी का इतना नाम नहीं जितना क्रिकेट का है, तो वाकई में क्रिकेट बहुत आगे, हॉकी भी इस वक्त बहुत अच्छा, हॉकी तो छोड़ी, कबड्डी जैसा खेल भी आज इंडिया में बहुत ऊपर आ गया है। लेकिन क्या कह रहा था, हाँ, हर माँ बाप का सपना होता है कि उनके घर में सचिन, गांगुली और धोनी और विराट जैसा पैदा हो, लेकिन जब वो दिव्यांग या विकलांग होता है तो वो सारी उम्मीद टूट जाती हैं। अभी जो ये खिलाड़ी जिस लेवल पर खेले हैं, न केवल अपने माँ बापों के एक ऐसे सपने को पूरा किया जो उन्होंने कभी देखा ही नहीं था, और ये जो छुप के घरों में रहा करते थे कि लोग सड़क पे, जिसका एक पैर नहीं है वो सड़क पे चलता है, लोग उसे किस किस शब्दों से बुलाते हैं आपको मालूम है, वो शर्म के मारे ढंग से ज़्यादा निकलते ही नहीं लोग सड़कों पे। लेकिन आज वही खिलाड़ी अपने अपने सिटी के स्टार हैं, लोग उन्हें बड़े बड़े प्रोग्राम से बुलाते हैं, फीते कटवाते हैं, ओपनिंग करवा रहे हैं शोरूम्स की। तो आज ये खिलाड़ी धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं, और राशिद भाई जैसा व्यक्ति और यहाँ बॉम्बे में इतने नामी गिरामी हस्तियाँ जो हमारे साथ अब जुड़ने जा रही हैं, तो यकीनन ये एक हमारी एक नई शुरुआत, हम ये कह रहे हैं 25वां सिल्वर जुबली नहीं बल्कि हमारा पहला ही इवेंट हम मान के चल रहे हैं, और यहाँ से आगे जो रूप होगा वो यकीनन बहुत बड़ा रूप होगा, और मैं इसका क्रेडिट जरूर राशिद भाई को देना चाहूँगा। My question to Subro sir. Yeah. What are the kind of practices and physical training you are undergoing, the team is undergoing for this match? एक्चुअली हम लोगों का टीम में जो सब प्लेयर्स है, सभी का जो फिजिकल डिसेबिलिटीज़ है, द कैटेगरीज आर वेरी डिफरेंट। किसी का, जैसे मेरा एक लेग मिड थाई एम्प्यूटेड है इन अ रोड एक्सीडेंट, तो किसी का एक हाथ नहीं है, किसी का पोलियो अफेक्टेड है। तो सभी अपने शहर में जो नॉर्मल टीम्स है, मोस्टली प्लेयर्स नॉर्मल टीम्स के साथ ही जो ट्रेनिंग्स है, सेशंस है, एवरीथिंग वही करता है, और नॉर्मल जो लीग्स होता है अपना अपना शहर में वही खेलते हैं। जैसे मैं कोलकाता से हूँ, तो CAB के अंडर में और नॉन CAB जो टूर्नामेंट्स नॉर्मल क्रिकेटर्स का होता है, मैं वहीं पे ही खेलता हूँ टू अपग्रेड माई सेल्फ, क्योंकि अभी इंटरनेशनली हम लोगों को जहाँ पे भी खेलना पड़ता है, तो ओपोनेंट टीम में जो फर्स्ट बॉलर्स है अराउंड 130-135 प्लस में ही बॉल करते हैं। किसी का शायद हाथ का 2-3 उंगली नहीं है, तो ये नहीं है, तो 140-35 हम लोग को फेस करना ही पड़ता है। तो वो अपग्रेडेशन के लिए हम लोगों को नॉर्मल क्रिकेट ही खेलना पड़ता है। सर, सिंस यू आर फ्रॉम कोलकाता, यस, आप दादा से मिले, और क्या दादा ने आपको कभी सपोर्ट करने की कोशिश की? एक्चुअली दादा के साथ मुलाकात हुआ, लेकिन उतना बात हो नहीं पाया कि, लेकिन अभी भी है बहुत जन, लक्ष्मी रतन शुक्ला का नाम शायद आप सुने, तो वो हम लोगों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं इस बारे में। अभी लास्ट महीने ही हम लोग का कलकत्ता में इंडिया, बांग्लादेश और नेपाल का एक ट्राई सीरीज़ हुआ, जो लोकल टीवी चैनल में भी लाइव टेलीकास्ट वगैरह सब हुआ था। नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट नहीं मिला। लास्ट 3-4 इयर्स में जो चेंजेस के बारे में हम बोल रहे थे, क्योंकि मेरा एम्पुटेशन हुआ था इन 2008, तो 2009-10 में हम जब खेलने गए थे, तो ये सारा जो फिज़िकली चैलेंज, एक्चुअली उसके बिफोर दैट, हाँ नहीं, मतलब दूसरा जो सब फिज़िकली चैलेंज क्रिकेट में, तो उसके एक्चुअली पहले मैं नॉर्मल क्रिकेट ही खेल रहा था अंडर CAB, तो अंडर 22 में मेरा सिलेक्शन भी होने वाला था, बट उसके बाद एक्सीडेंट के बाद जो आर्टिफिशियल लिम्ब लगा के फिर हम खेलना चालू किए, तो उसके बाद जब हम फिज़िकली चैलेंज क्रिकेट में गए, तो उधर जो 5 ओवर का, 6 ओवर का, 10 ओवर का मैच होता था, उतना अपग्रेडेड सिचुएशंस में नहीं होता था। तो ये सब चीज़ों के लिए हम एक वक्त आफ्टर दैट इन 2010 उसको छोड़ दिया था।
बट उसके बाद जो डीएसएस जब प्रॉपरली और चालू किए, इंटरनेशनल टीम्स हुआ, सारा स्टेट्स का टीम बना इन ए प्रॉपर वे, जो नॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ जो मैचेस खेला जाता है, तो फिर अंडर आफ्टर 2013-14 से फिर से मैं चालू किया। लेकिन लास्ट 3-4 इयर्स में अभी बहुत सारा जन को ये क्रिकेट में थोड़ा सा इंटरेस्ट मिला, क्योंकि जो देखे हैं एक बार, तो उनको वो पैशन दिखाई देगा कि 135 में बॉलर कैसे बॉल करता है और बैट्समैन कैसे खेलते हैं, एक हाथ से कैसे कैचेस पकड़ता है। अभी नॉर्मल क्रिकेट में एक हाथ से कैचेस जब पकड़ता है तो टीवी में 4-5 बार उसका रिपीट टेलीकास्ट होता है, लेकिन हम लोग का क्रिकेट में हमेशा 10 कैच में से शायद दिखाई देगा 8 कैच एक ही हाथ से लेते हैं। तो ये सारा डिफरेंस देखने के बाद अभी बहुत सारे लोग आगे आए हैं, तो आगे आने की वजह से अभी हम लोग को थोड़ा प्रॉपर ग्राउंड्स मिलता है या ज़्यादा बेटर फैसिलिटीज़ मिलता है, तो ये सब मिलने लगा है। नहीं, इट्स नॉट दैट हम अभी अभी सबके तरफ से ही, अभी स्टेट का भी, तो हम लोगों का सारा स्टेट्स का भी टीम्स है, तो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर भी तो थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है, लेकिन कई जगह से भी उतना प्रॉपर वे में कुछ हेल्प वगैरह नहीं मिलता है। नो। सर मेरा इनसे ही क्वेश्चन जुड़ रहा है, क्या आप खेल मंत्री को और इनको आप इस क्रिकेट के बारे में बताएंगे कि उनको जानते ही नहीं क्रिकेट कि उन्होंने ऐड किया है उसमें? देखिए आप, खेल मंत्री से पहले मैं आपको प्रधानमंत्री साहब के बारे में ज़रूर बता दूंगा कि जब प्रधानमंत्री जी ने दिव्यांग शब्द दिया, तो एशिया कप का हम जो आयोजन कर रहे थे उसकी मुबारकबाद उन्होंने राइटिंग में भेजी थी कि भारतीय दिव्यांग क्रिकेट टीम को एशिया कप के लिए शुभकामनाएं। एशिया कप शुरू होने से पहले हमारी टीम ने घोषणा करी थी, यदि हम ये कप जीतेंगे तो मोदी साहब के हाथ में कप दे देंगे। भारतीय टीम जीत गई। मोर देन 20 चक्कर मैंने प्रधानमंत्री कार्यालय के लगा लिए, आज तक प्रधानमंत्री जी मिले नहीं हैं। अभी 7-8 दिन पहले मैंने आरटीआई लगाई है कि भाई आखिर क्यों नहीं मिले हो आप हमारे खिलाड़ियों को। जी बहुत सारे मेरे पास तो डॉक्यूमेंट्स हैं, काफ़ी बड़ी कार्रवाई हुई है मेरे से, स्टेट वाइज पूरा इनका बायोडाटा मांगा, कई चीज़ें मांगी, लेकिन नतीजा 0, 0 एंड 00। सर आप कुछ कंटिन्यू कर रहे थे। So guys, we have Mr. Sachin Joshi here. Mr. Mohinder Amarnath, sorry, Mr. Mohinder Amarnath is here. मैं देख नहीं पाया क्योंकि लाइट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, तो लेट्स वेलकम मिस्टर मोहिंदर। वेलकम सर। मैं अपनी एक्साइटमेंट 1 मिनट के लिए बयान कर दूं, क्योंकि मैंने सर को हमेशा यूट्यूब पे खेलते हुए देखा है, ब्लैक एंड वाइट, तो मेरे लिए तो थोड़ी सांसें थम गई हैं मेरी, एंड आई लव क्रिकेट। सो वेलकम सर। Sir, as you know, we are here for the Disabled Sporting Society, and lot of things are already happened here. बहुत सारे क्वेश्चन आंसर हो चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं, तो मैं स्ट्रेट आपके पास आना चाहूँगा मोहिंदर सर कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? नहीं जी, बहुत ये अच्छी चीज़ है, और मैं बाहर बैठा था, बात कर रहा था फ्रेंड के साथ, नेहा चावला के साथ, कि मतलब ये एक ऐसा गेम है जो हर हिंदुस्तानी खेलना चाहता है। आप जैसे भी हों, बट आपका ये एक एम्बिशन है, आपके स्टार्स हैं, आपके हीरोज़ हैं, और आप उनकी तरह खेलना चाहते हैं, बनना चाहते हैं। तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं यहाँ पे हूँ, और मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ अदा नेहा का, और जिन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया, क्योंकि एक ऐसा कॉज है मेरे ख्याल से जिसके लिए जितना भी किया जाए कम है। और तो मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ कि आई होप कि आने वाले दिनों में बीसीसीआई इस पे ध्यान दे, और ये जो एसोसिएशन है ये एफिलेटेड हो जाए, जुड़ जाए बीसीसीआई के साथ, और बीसीसीआई ने बिगर वे आके इनकी हेल्प करे, और जिससे कि हज़ारों लाखों बच्चे लोग जो हैं ये खेलें और उसको एंजॉय करें।
Mohinder sir, my question to you over here, Vidita from Genians. What would you like to say to the facilities the disabled people don't get for cricket and all? टू वेरी ऑनेस्टली मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है बिकॉज कि मैंने देखा नहीं है या मैं इनके साथ मैं जुड़ा नहीं हूँ इनके साथ। मैं यहाँ पे आया हूँ बिकॉज मुझे इनसे मोहब्बत है और मैं चाहता हूँ कि ये जो चीज़ है ये बड़ी हो आने वाले दिनों में। और फैसिलिटीज़ आई एम श्योर कि लाइक जैसा मैंने सुना है कि इतनी ज़्यादा नहीं है इनके लिए, इसलिए मैंने सजेशन ये दी है कि अगर BCCI जो इतना करती है स्पोर्ट्स के लिए हिंदुस्तान में हर लेवल पे, तो अगर इनके लिए भी थोड़ा बहुत वो कर दें तो मैं समझता हूँ बहुत मददगार रहेगी और आने वाले दिनों के लिए ये चीज़ और बढ़ जाएगी। सर क्या आप उनको सपोर्ट करोगे? यू लाइक द गेम यू सेड। नहीं जी, मेरी लाइक दुआएं हैं उनके साथ और मैं आया यहाँ पे इसीलिए हूँ क्योंकि मुझे मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ कर सकूँ इनके लिए, तो इसलिए अगर मैं कुछ कर सकूँगा तो डेफिनेटली करूँगा। थैंक्स सर। नहीं जी, अच्छी चीज़ है। मैं समझता हूँ कि ये टीम जो मतलब कि टीम ने कुछ हासिल किया है, मेरे ख्याल से ये एक यादगार है सबके लिए। एंड जहाँ तक ये चीज़ें हैं, मेरे ख्याल से आप कबीर खान से बात करें तो शायद आपको वो पूरी डिटेल्स दे देंगे। नहीं जी, रोल कुछ नहीं होता किसी का। आई बिलीव कि अगर फिल्म हिट होनी है तो सबको अपना अपना रोल करना पड़ता है उसमें। और तो मेरे ख्याल से जो भी वो करें उनको मालूम है क्या करना है, तो आई डोंट थिंक कि मेरे सजेशन की ज़रूरत है कि किसको लेना चाहिए क्या करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये एक ट्रू रियल स्टोरी है, तो आई एम श्योर कि जो आने वाले दिन है वो जब वो रिलीज़ होगी तो वो सब कुछ बयां कर देगी। He's more from entertainment industry. So how are you gonna make it? Are you guys planning to make it like business model, something like that, or कुछ इसको ऊपर ले जाने के लिए आपके क्या है? Because अगर आपने entertainment industry को बीच में involve किया तो कुछ ना कुछ plans तो होंगे आपके। बिल्कुल है चिराग, but before I start anything, thank you for joining us, sir. We have been your fans. We have been doing cricket, watching players like you. मैं कपिल सर से परसों रात मिला था एलन के बुक लॉन्च पे, सर से भी बात कर रहे थे, तो वही फिल्म की बात जैसे अभी चिराग कर रहे थे कि वही पुरानी स्टोरीज़ की हमने क्या किया, कैसे किया और क्या चीज़ें होनी चाहिए। चिराग, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि किसी भी चीज़ को करने के लिए आई वुड नॉट से अ बिजनेस मॉडल, बट फॉर डूइंग एनीथिंग राइट, द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच आई बिलीव इज़ द इंटेंशन। एंड व्हेन आई joined my hands with Harun sir, we are very clear. We have to make sure that the team and the players, they grow. And they grow in a manner where they do not need anybody else to look at them with certain kind of, sympathy. That's my primary agenda. No, I want people to watch them as a star. Like you look at Virat Kohli and you say that he's a star. I'm sure, inshallah, I'll make sure that I do my effort in a right way so that Shubhra Jodhar can be known as a star. He should endorse 5 brands. I think he's the Asia's first blade runner. who already
Second, I would want another reason, I would say, when I mention intention, I joined hands with Adia Creations. Abhishek Jain has been my very old friend. He's been an ex-cricketer by himself. He used to play Ranji. He's an off-spinner. I know where I can blackmail him in a proper way. So I took his hand and I said, brother, you need to do it. I'm not asking you, can you favor me? I'm telling you, you have to. His intention was clear that Rashid, we will make sure that whatever we do for sports, nothing else. Then we got help of people like Hitin Bhai. We know who he is. We do not need to give introduction of him. He's a well-established individual in this industry. Of course, his intention was also right to help us. There's no other intention from his side. He just wanted to stand by us. Then, simultaneously, we joined hands with Big Brother. They have been a real strength over the last 2 weeks. So, when you have these kind of people, okay, joining hands, and you know that the intentions remain same, I don't think so you need a business plan after that. That's a great thought. And I want you to give respect to Mr. Mohinder Amarnath ji. So I would love to. That'll be an honor for me. Give it up for them. So thank you for joining us. You're really important for us. So we have more players here. If you want to ask them, they're here. Anything because you can ask them कि इनके physical challenges क्या हैं, इनकी training कैसी है. So, sorry, I'll take my words back. He is the first blade cricketer of the world, not runner. So, I'm sorry for my wrong facts, because media, that's my fault actually. So, yeah. So,
आ गया ना देख आ गया या इट्स एन ऑनर इट्स बेसिकली द थिंग इज जैसे है ना बताया गया कि अभी मुझे भी नहीं मानता कि ऐसी कोई टीम है आज ही मुझे मतलब जब इन्होंने मुझे बताया कि भाई ऐसा ऐसा है अगर आप सपोर्ट करोगे आप आओगे इन लोगों तभी मुझे पता चला ऐसी टीम भी और आज इन लोगों के बारे में जब जाना कि ये लोग इतना अच्छा करते हैं तो इसीलिए मैंने वहाँ प्रपोज भी किया कि एक हमारी मैच होनी चाहिए ताकि हमें भी पता चले कि यार और लोगों को भी पता चले हमारे ज़रिए कि ये लोग कितना अच्छा खेलते हैं तो कितना अच्छा मतलब शौक भी है और एक प्राउड भी है जब जाना जाता है कि एक डिसेबल पर्सन जब 140 की स्पीड से बॉल डाले यार मतलब वही तो मुझे देखना है और ये तो मैं सबको बताना चाहता हूँ कि अच्छे लोग नहीं डाल सकते 140 की स्पीड से और अगर ये लोग कर सकते हो तो मतलब क्या नहीं हो सकता। और जिस तरह से मतलब क्या होता है कि बहुत सारे घर भी हैं बहुत सारे लोग भी ऐसे हैं जो जिसमें ऐसे बच्चे हैं जो सोचते हैं यार अब ये क्या करेंगे तो उन लोगों के लिए ये है कि देखो अगर ऊपर वाला कुछ देता है या कुछ नहीं देता है तो कुछ देता भी है साथ तो एक अलग टैलेंट है ये एक इसको टैप करना बहुत ज़रूरी है कि अगर उनके पास कुछ सपोज नहीं हुआ तो एक ऐसी चीज़ है तो किसी स्पोर्ट में या किसी चीज़ में जिसमें भी वो माहिर हो या जिसमें अच्छे हो तो उन्हें सपोर्ट करना चाहिए उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। जब हम देखते ज़्यादातर के डिसेबल पर्सनस को कि उनको ऐसी कोई वे रास्ता नहीं मिलता है राह नहीं मिलती अपने सपनों को जीने की या अपने सपनों को पूरा करने की तो ज़्यादा करके हम रोड पे देखते हैं वो बैगर होते हैं उनके लिए भी एक अच्छा है कि आए और इसे जो वही है जो उनका टैलेंट है फॉर एग्जांपल जो भी हो मतलब वो जिस चीज़ में अच्छे हो क्या होता है ना कि आप देखना कभी भी मैं तो थिएटर किया है तो हम लोगों ने जाके स्पैस्टिक सोसाइटी में तो हमने जाके उनको सिखाया भी है जब हम लोगों ने उनको ड्रामा सिखाया तो हमने ये देखा कि इनके पास एक ऐसी टैलेंट है शायद इनसे कुछ छीन लिया भगवान ने या कुछ हो गलत हो गया इनके साथ लेकिन इनके पास एक टैलेंट होती है एक जो किसी के पास नहीं है जो इमोशन वो लेके आ सकते हैं वो कोई नहीं लेके आ सकता वो मैंने काम करके देखा है उनके साथ अनबिलीवेबल इट इज़ डिफरेंट और ऐसे इन लोगों के साथ भी है ये लोग फिजिकली डिसेबल्ड हैं चलो ठीक है लेकिन इनके पास एक टैलेंट है कि ये है अगर फिजिकली डिसेबल्ड होने के बावजूद अगर ये लोग इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और बाहर जिधर भी जा रहे हैं मैचेस खेले उन्हें हरा के कप लेके आ सकते हैं तो ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। सी द होल पॉइंट इज़ दैट अवेयरनेस नहीं है और किस लेवल तक क्या होता है कैसे करते हैं हम लोग बहुत ही पीछे हैं हमें पता ही नहीं कि कैसा होता है क्या होता है तो हो सकता है इसका कोई तरीका या हो सकता है कुछ होगा आई एम श्योर वंस द गवर्नमेंट इज़ अवेयर ऑफ दिस आई एम श्योर कुछ ना कुछ होगा सो आई डोंट नो कि वो तरीका क्या होता है लेट्स नॉट गेट इनटू इट उसमें नहीं पड़े तो बेटर है क्योंकि हम उसमें नहीं है जो लोग हैं आई एम श्योर दे लुकिंग इनटू इट। पिक्चर भी बन रही है जो अभी बात हो रही थी 1983 कपिल देव कैरेक्टर एज वी नो कपिल देव इज वेरी कूल एंड काम पर्सन एंड वी नो रणवीर सिंह इज वेरी एनर्जेटिक मैन लाइक डू यू थिंक इज देयर एंड सम another actor in Bollywood who can play better than Ranveer Singh? I don't know. I mean, I won't be able to know this, but I'm sure we as an actors have the capability to play any actor or any character because हम actor हैं हमारा काम ही है कि हम जो हैं वो ना करें। अगर हम एनर्जेटिक जैसे मेरे भी बहुत एनर्जी है लेकिन हम बहुत बार ऐसे कैरेक्टर करते हैं जो ऐसा लगता है कि बिल्कुल कूल काम कॉम्प्लेक्स है तो बिकॉज वी आर प्लेइंग अ कैरेक्टर तो कर सकते क्यों नहीं कर सकते आई एम श्योर रणवीर सिंह वुड डू अ वंडरफुल जॉब। थैंक यू।